Hello students, in the last video we have studied about the protein. Proteins are the polymers of amino acid or amino acids are the monomer of protein. Now our topic is structure of protein. How protein's structure is formed, how amino acid get combined together to form a structure of protein. What is polypeptide and what is protein? We always think पेप्टाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है एंड उनमें डिफरेंसेस क्या है. We are going to study about all these topics in this video. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड से बना होता है. अमाइनो एसिड्स, if I consider amino acid as circle and if I join them then it will form a chain. और इस तरह से चेन जो बनती जाएगी, ये दो अमाइनो एसिड, ये थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड, इनके बीच में जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. And if this chain is going to form, then it is known as polypeptide. The bond is peptide bond and the chain will be known as polypeptide chain. Now, what is protein? So there is a little bit confusion between polypeptide chain and protein. Let us discuss this topic thoroughly in this video. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर सीन एट 4 लेवल्स. हमें जब स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटीन के तो वो 4 लेवल्स पे देखने हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. अमाइनो एसिड्स फॉर्म अ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग एक रस्सी के जैसा बना लेता है अमाइनो एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं एक चेन के जैसा बना लेता है. और उनके बीच में, दो अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनेगा. दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. हमेशा ध्यान रखना, इफ आई टेक 4 अमाइनो एसिड देन द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम विल बी ओनली 3, बिकॉज ये एक स्ट्रेट चेन बनेगी. अगर ये सर्कुलर बनती, अगर ये वाला एंड और ये वाला एंड आपस में ज्वाइन होता, देन पेप्टाइड बॉन्ड का जो नंबर होता वो अमाइनो एसिड के नंबर के जितना ही होता. बट यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट चेन बन रही है और अमाइनो एसिड जो है उनका नंबर और पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर डिफरेंट है. पेप्टाइड बॉन्ड का जो नंबर होगा वो अमाइनो एसिड के नंबर से एक कम होगा. So this is the peptide bond between 2 amino acid, or it is a bond that join amino acid to form the structure of protein or polypeptide. Peptide bond. Peptide bond की definition बहुत बार आती है ये exams में, and this is a very important topic. You should know about the peptide bond. Peptide bond एक covalent bond जैसा होता है. Covalent bond जो हम पढ़ते हैं, the bond formed by sharing of an electrons. So ये covalent bond है formed between the amino group of one amino acid and carboxylic group of another amino acid by removal of water molecule. This definition seems to be little bit confusing. इसको simpler बनाते हैं प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है उससे. Look at this equation. I have drawn 2 amino acid structure. This is the carbon, alpha carbon, R group, H group, carboxylic group and amino group. This is the second amino acid, alpha carbon, carboxylic group and amino group. So this is the first amino acid and the second amino acid. Now, amino group of first amino acid and the carboxylic group of second amino acid, they are going to combine together. How they will join? NH2, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, OOH है. इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा to form a covalent bond between 2 amino acid.
किस तरह से होगा डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा एंड OH यहाँ से रिमूव होगा. सपोज दिस OH is being removed from COOH and H has been removed from NH2. देन क्या बनेगा यहाँ पर? जो रिमेनिंग पार्ट है वो NH बचेगा NH2 में से, और इसमें से COOH में से OH चला जाएगा तो CO बचेगा. So this is the removal of water molecule. That's why I have written here minus H2O, means removal हो रहा है इसमें water molecule का. So यहाँ पर H हटेगा और यहाँ से OH हटेगा. So the bond will be NH and उनके बीच में bond होगा and CO. This is known as the peptide bond. So ये एक peptide bond बन गया है between two amino acid. Now consider the definition of peptide bond. इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें अमाइनो ग्रुप लेना है एक अमाइनो एसिड का और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेना है, और उसके बीच में डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, और जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है. नाउ कंसिडर द डेफिनेशन. इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर यहाँ तक? फॉर्म्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड ऑफ वन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, मीन्स अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड and carboxylic group of other amino acid, carboxylic group of another amino acid by a removal of water molecule or dehydration. So peptide bond एक covalent bond है जो अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप एंड दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में बनता है, और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव आउट होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है. सो इससे क्लियरली समझ आ रहा है अमाइनो एसिड गेट्स जॉइंड टू फॉर्म पेप्टाइड जो लॉन्ग चेन होती है. देन पेप्टाइड जो चेन होगी, जो एक स्ट्रिंग के जैसे, जो एक रस्सी के जैसे चेन बनेगी, या इसको आप कंसिडर कर सकते हो आपके पास एक थ्रेड है एंड आप उसमें पर्ल्स डाल रहे हैं, मीन्स उसमें जो मोती होते हैं उसके अंदर वो डाल रहे हैं जो पर्ल होंगे. यू आर गोइंग टू कंसिडर दीज बीड्स एज एन अमाइनो एसिड and the whole chain formed by these beads will be considered as peptide. So this will be a long chain like structure, but if अगर उस चेन को, जो स्ट्रेट चेन बनी है, उसको किसी तरह से हम वाइंड अप कर दें, उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे दें कि हमें डबल बनानी है, वो ट्रिपल बनानी है, नेकलेस काइंड ऑफ बनानी है, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज प्रोटीन. So protein is the functional form of peptide. ओवरऑल स्ट्रक्चर ले लेता है जब पेप्टाइड चेन, देन प्रोटीन बनता है. अमाइनो एसिड्स कैन बी असेंशियल और नॉन असेंशियल. नाउ ये अमाइनो एसिड असेंशियल एंड नॉन असेंशियल में किस तरह से क्लासीफाई किए गए हैं, क्या मतलब होता है इनका. अगर अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में खुद से बनते हैं एंड नो नीड टू टेक देम थ्रू डाइट, देन दे आर नोन एज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड. तो वो नॉन असेंशियल वाले अमाइनो एसिड की फॉर्म में कंसिडर किए जाएंगे. बट अगर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते एंड उनकी इम्पॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, फंक्शंस है उनका हमारी बॉडी में, देन उनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं. सो डाइट जो है वो असेंशियल है, then they are considered as essential amino acids. So there are two types of amino acid, essential amino acid and non essential amino acid. Essential जिनकी requirement है through diet, they are not formed in our body, so they are taken through diet. And non-essential are the reverse amino acid to the essential amino acid that they are already formed in our body, हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं. So they are not required through diet, तो उन्हें हमें अपने न्यूट्रिएंट्स डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है. Protein is a polymer of amino acid. We all know about this. प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर. अच्छा, अब इसमें ये बच्चों के माइंड में रहता है कि प्रोटीन जो है उसमें जो भी अमाइनो एसिड लगता है वो सारे अमाइनो एसिड सेम होंगे,
बट दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन वाला यूज़ कर रखा है, देन वो अगर उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड की चेन है वो, तो उसमें रिपीटिव ग्लाइसिन 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 इस तरह से बनता है, देन यू आर रॉन्ग। बिकॉज प्रोटीन्स आर द हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो वर्ड जो होता है इट मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट पॉलीमर है। डिफरेंट पॉलीमर का मतलब यहाँ पर है दैट इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अरेंज टुगेदर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली ग्लाइसिन ग्लाइसिन, ग्लाइसिन होगा, वेलाइन होगा, फिनाइल एलेनाइन होगा, टायरोसिन होगा या ग्लूटामिक एसिड होगा, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की चेन बनती है। सो आप सोचो कि कितनी वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स होगी, बिकॉज 20 अमाइनो एसिड या 21 अमाइनो एसिड से हम उनको उनके नंबर के अकॉर्डिंग, किसी में 100 अमाइनो एसिड का प्रोटीन है, कोई 1000 वाला है, किसी में ग्लाइसिन बार बार आ रहा है, किसी में वेलाइन बार बार आ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। सो प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर नॉट होमोपॉलीमर। प्रोटीन्स आर अबंडेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट प्रोटीन की होती है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हमारी बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है। देन आफ्टर वाटर प्रोटीन्स आर देयर इन अबंडेंस इन आवर बॉडी। प्रोटीन एंजाइम की फॉर्म में भी काम करता है। प्रोटीन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइगेंड्स को या सब्सटेंस को रिसीव करते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हॉर्मोन्स आर ऑल्सो ए प्रोटीनिशियस इन नेचर। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन। सो प्रोटीन के बहुत ज़्यादा रोल है हमारी बॉडी में। प्रोटीन्स आर अबंडेंट इन आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन बहुत अबंडेंट है। आपने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, 11th में भी है टॉपिक और 9th में भी है, 9th स्टैंडर्ड में भी है। कोलेजन टिश्यू जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, वो 3 चीज़ों से बने होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल, ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर। सो उसमें ग्राउंड सब्सटेंस होता है कोलेजन नाम का। ये एक कुछ नहीं, ये एक प्रोटीन ही है। सो ये बहुत अबंडेंस में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। Second example of protein is trypsin. Trypsin is an enzyme produced by pancreas, used for the breakdown of protein and peptones into amino acids. Insulin is a hormone released by pancreas. Deficiency of insulin leads to the diabetes. Receptors, gustatory receptor, olfactory receptor. Gustatory receptor are there for taste of food. Olfactory is for smell, present in the nose. This is present in the tongue. Antibodies, these are the Y-shaped protein substance that engulf antigens. So these are the examples of proteins. Proteins जो है वाटर के बाद हमारी बॉडी में प्रोटीन ही अबंडेंस में प्रेजेंट होता है। Now come to the 4 level structures of protein: primary structure, secondary structure, tertiary structure, and the last one is the quaternary structure. This is the very important topic and quite interesting also. प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ये बेसिक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, कि पहले नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड है, दूसरे पे कौन सा है, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, टिल नाउ द लास्ट अमाइनो एसिड। जो ये बेसिक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, जो हमने एक चेन बनाई थी जिसमें बीड्स डाले थे, अगर हम वो बीड्स कलरफुल वाले बीड्स डालें, सपोज फर्स्ट वाले पे रेड बीड है, देन ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, तो ये जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो हमें इससे पोजिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन है, सेकंड पे कौन सा है, वेलाइन है, थर्ड पे टायरोसिन है, फोर्थ पे अगेन वेलाइन आ रहा है, फिफ्थ पे फिनाइल एलेनाइन आ रहा है। तो ये जो हमें पोजिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस इज द बेसिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये किस तरह से बनेगा, अगेन इसमें पेप्टाइड बॉन्ड को हमें कंसिडर करना है। सी यहाँ पर H को इसके साथ में ही लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना है।
अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है ये। H को हमने साथ में लिख दिया R ग्रुप एंड यहाँ पर NH2 अमाइनो ग्रुप, और ये COOH है जिसको हमने किसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कर दिया है। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में ये इन्वॉल्व हो गया है COOH ग्रुप जो है फर्स्ट वाले अमाइनो एसिड का, ये अमाइनो ग्रुप के साथ सेकंड जो अमाइनो एसिड है उसका जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ इन्वॉल्व हो गया है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। सेकंड वाला जो है ये अगेन पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, फिर ये थर्ड वाला पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। इस तरह से ये एक चेन बनती जाती है। अब आपने देखा यहाँ पर एक साइड में अमाइनो ग्रुप जो है ये आगे जाके पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर बचता है CO ग्रुप जो आगे जाके पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। इसमें जो NH ग्रुप है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है और CO ग्रुप जो है राइट हैंड साइड पे है। सो ये जो लेफ्ट वाला इस पे अमाइनो N वाला है इसलिए इसको N टर्मिनल बोलते हैं पेप्टाइड का, और ये जो है इसमें CO ग्रुप वाला है तो इसको C टर्मिनल। इट मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन हैज़ 2 टर्मिनल्स। At the left end it is N terminal and at the right end it is C terminal। और ये मैंने आपको पहले बताया था अगर अमाइनो एसिड 4 है देन उनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे वो 3 होंगे। अगर 5 अमाइनो एसिड है देन द पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी 4। इस तरह से होता है। नाउ द सेकेंड लेवल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को कॉइल्ड कर देंगे, सपोज करो जो पहले के टाइम में जो टेलीफोन होते थे उसकी जो कॉर्ड होती थी वो हेलिकल होती थी, इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाती थी वो। अगर ये स्ट्रेट चेन होता तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनता। अगर ये कॉइल्ड हो रहा है, ये अपने आप पे ही अगर कॉइल्ड हो रहा है और हेलिकल बना रहा है, राइट हेलिक्स लेफ्ट हेलिक्स इस तरह से बना रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। व्हेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर गेट्स फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स देन इट इज़ नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन में ये ओनली राइट हैंडेड वाला हेलिक्स मिलता है, लेफ्ट हैंडेड वाला हेलिक्स नहीं मिलता है। इसके अंदर बहुत सारी इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ये सारी इन्वॉल्व होती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में प्रोटीन के। नाउ द थर्ड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। जब ये लॉन्ग चेन प्रोटीन है और ये अपने आप पे ही इस तरह से फोल्ड हो रहा है कि ये 3D स्ट्रक्चर बना ले, एक होलो स्ट्रक्चर बना ले, जैसे वुलन बॉल बनाते हैं हम, वो अपने आप ही अपने ऊपर इस तरह से फोल्ड होता रहता है और एक 3D स्ट्रक्चर हमें मिलता है, देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो व्हेन अ लॉन्ग चेन प्रोटीन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल, एक वूल के बॉल के जैसे अगर ये स्ट्रक्चर बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है, देन इट इज नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी इज द लास्ट लेवल और द फोर्थ लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसमें पेप्टाइड जो होगी वो एक नहीं होगी। अभी तक हमने ओनली सिंगल पेप्टाइड के बारे में कंसिडर किया है, उसी में ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है, और जब वो हेलिकल फॉर्म ले लेता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, और जब वो 3D स्ट्रक्चर बना लेता है देन इट इज़ कंसिडर एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। बट अगर पेप्टाइड चेन्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, देन वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से वाइंड अप हो रही हैं कि एक वो फंक्शनल स्ट्रक्चर बना ले प्रोटीन का, देन इट इज़ नोन एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सो व्हेन 2 or more देन पॉलीपेप्टाइड चेन्स फोल्डेड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्ड हो जाएं और अरेंज हो जाए कि एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाए प्रोटीन का, देन उसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन का हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स यूनिट होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, मीन्स 4 हो गई हैं। आपने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा भी है। ये रेड कलर का पिगमेंट हमारी जो RBC में प्रेजेंट होता है, नेट गेट्स कंबाइंड टू ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो एक टाइम पे ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड हो सकता है, बिकॉज इट हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट्स वाई।
I hope you all have understood this topic very well. Thank you for watching this video.